Hello everyone. So in this lecture we are trying to see deeply what is basically Work-Raju theorem and how we are going to apply this in our questions which may be asked. So we already saw work done by all the forces equal to change in kinetic energy. This is known as work energy theorem. But the question is, which forces are involved in this left hand side? When I say work done by all the forces, then which forces are involved? So the answer is work done by external forces, work done by internal forces, even work done by pseudo forces if observer is in non-inertial frame. Now students, I hope you know the difference between work done by external, what are external forces and what are internal forces. Basically, external forces and internal forces, they are nothing but they depend upon the choice of our system. For example, if this is block A, this is block B, and this is connected by a string, and someone is pulling this block B at F. So A is connected by B, B is also connected by A, so there is a tension in the string. Now if I consider A as a system, then this tension will be considered as external force for A. If I consider B as a system, then also I will draw the FBT of B. So this F and tension will act as external force. But as we saw in our Newton's law discussion, if I consider A plus B as a system, then this tension will be internal force and this F will be external force. So same tension was external force if we were considering A and B as two different systems, and the same tension T became internal force if we considered A and B as a whole as a system. So we can say external or internal forces can be any of these forces, like work done by gravitational force plus work done by normal force plus work done by tension force plus work done by frictional force plus work done by spring force plus work done by electrostatic force, okay, plus work done by pseudo force is equal to change in kinetic energy. So we can see all the forces which we have studied or which we know in class 11th or 12th, they all can be used to calculate the work done, and depending upon these forces, examiner can make any type of question. Examiner, he can make a question in which only tension is doing work or normal is doing work. Yeah, he can make a question in which tension, normal and gravity are doing work done. So it depends on the mood and thought of examiner, what he is thinking. So I can make any type of question. It's no doubt, it's clear. More is the number of forces are going to be involved, more lengthier will be our solution. So, but the theme will remain same. So again, as I keep repeatedly saying, we don't have to give a much time to problems. We have to see the concept behind the problem. Okay, what is the concept? So if I'm strong in concept, I can solve any type of problem. So now we will look out one by one different work done by different forces in different cases. Like we will see work done by tension force, then how to deal the problems with normal force, how to deal the problem with work done by friction, how to deal the problem with work done by spring, and at last when I know separately how to calculate the work done by friction, spring, and so on. So if examiner formulates a problem which is containing two or more than two forces, I can easily do the problem. Now here this is a very simple problem. A block is placed on the ground. Suppose its mass is m.
and a force F is applied, and we have been asked the work done by different forces on this block. So what we will do, we will draw FPT, gravitational force, normal reaction F, and suppose it moved by a distance of delta S. Now work done by normal force, since normal and ds are perpendicular to each other, work done by normal is 0, work done by gravity is 0. Only work will be done by this external or the applied force, which is equal to F dot ds. Since F and ds are parallel, so this will come out to be F delta S. This is very simple. So here what we saw, work done by normal force came out to be 0. But it's not necessary that work done by normal is always 0. This is not true. In many cases work done by normal force will come out to be 0. ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई केसेस में नॉर्मल का वर्क डन 0 आएगा, बट ऐसा नहीं है कि वर्क डन नॉर्मल का जो वर्क डन है नॉर्मल फोर्स का वो हमेशा 0 नहीं होगा. जैसे इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं. Now there are two blocks in contact with each other, and again under this force the system moves by a distance of delta S. Okay. Now we have to clear one thing. There are normal force, but there are many type of normal force. Like N1 is between A and ground, N2 is between B and ground. Like if I draw the FBT of A, it will be something like this: MAG, N1, F, and from B block the NAB. And if I draw the FBT of B, then this will be MBG, then N2, and from here NAB. So this will be the FBT. So here what we will see, work done by N1 on block A will be 0, because again theta is 90 degree. Work done by N2 on B again will be 0, as theta is 90 degree. But work done by NAB on A, if we will calculate this, so what will happen on A, NAB is acting, suppose its magnitude I am taking as N. So here the displacement is delta S, and the angle between N and ds is 180 degree. So the answer will be work done by normal reaction between A and B on A will be equal to minus N delta S. Similarly, if we calculate this work done on B, then what we will find, on B the N and ds are in same direction. You can see here. So for B block, this N and ds are parallel. So work done by the same force NAB on B will be equal to plus N delta S. So net work done by normal reaction between A and B on both A and B will be equal to 0. So we have to look very carefully on the question what examiner has asked, whether he has asked work done by normal force on A or work done by normal force on B, or he has asked work done by normal force on the system A plus B. Accordingly, my answer will be different. So please have a look at this, and this is very simple concept, but still try to डिपोजिट इट योर माइंड. एकदम इसको दिमाग में बैठा लीजिए, कोई चीज़ को रट के जाने की जरूरत नहीं है. बस एक ही लाइन याद रखनी है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी. वाइल कैलकुलेटिंग द वर्क डन, ऑलवेज 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 स्पेसिफाई फॉर विच फोर्स यू आर कैलकुलेटिंग दिस वर्क डन, देन यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम. लेकिन अगर आप हवा में खाली वर्क डन निकालेंगे तो आप कभी ना कभी जरूर फंसेंगे. ठीक है. Again, we can see a new problem. This time there is a wedge which is placed in a lift, and a block is placed on this wedge. The conditions are the block is at rest. That means some kind of frictional force is there. So we can draw a friction force also, and this will be
static friction in nature. So there are three forces involved in the process. Now lift starts from rest with a speed v, that is constant. Block is at rest. Work done by the normal force between block and wedge during time t. So what we have to say, since block is at rest, so in the time t, the displacement of lift will be Vt, and since block is at rest, the displacement of lift will be the displacement of wedge, that will be the displacement of block. So we can write the displacement of lift equals to Vt. Now a little bit of geometry. This angle is theta, so this will be theta. Since normal is perpendicular, so this will be 90 minus theta, and the angle between n and delta s will be theta. So work done by normal force will be n dot ds, that will be n delta s cos theta. Now the question arises, what will be the value of n? So n can be easily calculated if we resolve this mg into two components, one along the plane and another perpendicular to this plane. So this will be mg sin theta, and this will be mg cos theta. So simply the work done will be mg delta s is Vt, cos square theta will be the answer. Here we can have more questions like what is the work done by gravity, what is the work done by friction. So same problem we will see, but since we are dealing this time all the normal force, so we are limited only up to normal force. Same problem, we can find the work done by friction, work done by gravity also. We will see soon same problem. Now नेक्स्ट हमारा है वर्क डन बाय ग्रेविटी. अब यहाँ पे दो तीन चीजें आप समझ लीजिए बेटा. पहले ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे कभी बाद में. ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी प्लैनेट है, हमारा प्लैनेट अर्थ है, अर्थ और किसी बॉडी के बीच में लग रहा है. यहाँ पर ये अर्थ का रेडियस है, ये अर्थ की सरफेस से हाइट है h. तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन बॉडी एंड अर्थ इज g, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय re प्लस h होल स्क्वायर. इसको आप चाहें तो g m अपॉन आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं. ये जो पार्ट है जी एम ई अपॉन आर एच का होल स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वैल्यू विल वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. ठीक है. अब होगा क्या बेटा, यहाँ पर अर्थ का रेडियस है लगभग 6400 किलोमीटर. अगर हम लोग छोटी मोटी हाइट ले रहे हैं 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, तो 6400 किलोमीटर के सामने ये क्वांटिटी होगी बड़ी छोटी. तो हम आर ई प्लस एच को ऑलमोस्ट आर ई लिख लेंगे और हमारा जो ये एक्सप्रेशन है ये रह जाएगा कितना, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जिसको हम लोग जानते हैं छोटा जी ना. दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 के आसपास हम ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए. और इस तरह से हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाता है वो रह जाता है mg. तो इस चैप्टर में और न्यूटन्स लॉ वाले चैप्टर में जब तक रहता, जब तक हम एज सच ग्रेविटेशन वाले चैप्टर पे आते नहीं हैं और इफेक्ट ऑफ हाइट और एल्टीट्यूड ऑन स्मॉल जी जब तक हम स्टडी नहीं करते हैं, तब तक हम यही मान के चलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट लग रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा mg. तो अभी हम जितनी भी प्रॉब्लम्स करेंगे उन सारी प्रॉब्लम्स में हम ये मानकर चलेंगे कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इज कांस्टेंट एंड दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड. ओके. नाउ यहां पर हम देखते हैं हमारे पास तीन केसेस हैं. एक ब्लॉक सीधा गिरता है h हाइट से, एक ब्लॉक इंक्लाइन स्मूथ प्लेन पे गिरता है और एक ब्लॉक कर्व प्लेन पे गिरता है. तीनों केस में वर्टिकल हाइट इज h h एंड h. ये बहुत इजी प्रॉब्लम है. mg फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे को है. यहाँ पर थीटा आपका हो जा रहा है कितना, 0. वर्क डन इज प्लस mgh. यहाँ पर mg और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है इसके बीच का एंगल कितना हो जा रहा है, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा. तो यहाँ पर क्योंकि एंगल हमेशा कांस्टेंट है तो ध्यान रखना बेटा, एक स्टेप मैंने यहाँ पे कम कर रखा है. एक्चुअली आपने शुरुआत कहाँ से करी, वर्क डन बाय ग्रेविटी इंटीग्रेशन ऑफ mg डॉट dl से ही करी. ये आपका बन गया mg
dl sin थीटा, क्योंकि sin थीटा कांस्टेंट था, एक्चुअली cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, तो sin थीटा कांस्टेंट था, तो dl का इंटीग्रेशन l हो गया और l sin थीटा इज h। आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल है, दिस इज द ट्राइंगल h l थीटा, सो h विल बी l sin थीटा। तो अगेन वर्क डन बाय ग्रेविटी कम्स आउट टू बी mgh। और इवन अगर ये कर्व्ड होता तो जैसा हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पे आपका इंक्लाइन प्लेन था, यहाँ पे ठीक है हर जगह पे थीटा चेंज हो रहा है, यहाँ का थीटा कुछ है, यहाँ का थीटा कुछ है, बट हर जगह पे आपको डीएल साइन थीटा मिलता। डीएल साइन थीटा आपका कब ऐसे आता, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखो बेटा जैसे ये है, ये आप आ रहे हो, यहाँ से आते डीएल साइन थीटा, ये डी वाई हो जाता, यहाँ से डीएल साइन थीटा आते डी वाई हो जाता, यहाँ से डीएल साइन थीटा होते ये डी वाई हो जाता, यहाँ से आगे बढ़ते ये डी वाई हो जाता। तो एक्चुअली हम जोड़ते क्या, नीचे की डिस्टेंस जो कि फिर से कितनी है h। तो हमारा रूल क्या बन गया, वर्क डन ग्रेविटी निकालना बड़ा आसान है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ वर्क डन बाय ग्रेविटी will always depend upon the initial position and final position. In fact, this is not the position, initial vertical level and the final vertical level. In all these cases, initial and final position is different. But in all the three cases, initial y coordinate and final y coordinate is same. Suppose this is 0, this is y, then here initial coordinate was y, final was 0. Initial was y, final was 0. Initial was y, final was 0. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी सिर्फ डिपेंड करता है किस पे बेटा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे। अगर आपके पास 100 से ज़्यादा रास्ते हों लेकिन सारों रास्तों पे अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपका h आ रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी सारे केसेस में mg h आ जाएगा। यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि g का किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है। डैट मीन्स आपने जो हाइट ली है वो कम है, वो अर्थ के रेडियस के कंपेरिजन में काफ़ी कम है। लेकिन यही सवाल अगर हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा जहाँ पे हमसे बोलेगा कि एक सैटेलाइट या किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से r रेडियस के बराबर ले गए, वहां पे हमारा आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखेंगे हम लोग। वर्क डन बाय ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा वर्क डन बाय टेंशन। तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं। एक हमारे पास पेंडुलम है, उसका बॉब हम रिलीज कर देते हैं पॉइंट ए से और ये थीटा एंगल कवर करता हुआ बी तक आता है। हमको पता लगाना है व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का तो ऑलरेडी हमने देखा था, वर्क डन सिर्फ वर्टिकल हाइट पे निकलेगा। सिंपल मैथमेटिक्स यूज होगी। ये एल है, यहाँ से एक ट्राइंगल बना देंगे, तो दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, टोटल लेंथ है एल। तो आपका जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर हुआ वो ये वाला कवर हुआ, यानी टोटल एल माइनस एल कॉस थीटा, दैट इज इतना। एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mg h, सो mg l 1 माइनस कॉस थीटा। रिगार्डिंग टेंशन, बस आप ये चीज समझने की कोशिश करो, ये एक सर्कुलर आर्क पे आ रहा है आपका बॉब, यहाँ पर टेंशन इस डायरेक्शन में थी और आपका जो डिस्प्लेसमेंट था वो इस डायरेक्शन में था। आपका ये एंगल कितना हो गया 90। थोड़ी देर में बॉब यहाँ पहुँच गया, अगेन टेंशन यहाँ हो गई, फिर से एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पर। तो टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज। देयरफॉर आपका जो t डॉट ds है वो हर पॉइंट पर 0 हो गया, तो आपका इंटीग्रल ऑफ t डॉट ds भी 0 हो गया। सो इस केस में वर्क डन बाय टेंशन विल बी 0 एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी mgl 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, आप देखिए यही सब जब छोटे छोटे सिंपल पॉइंट्स जुड़ते रहेंगे तो जो बड़ी से बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होगी उसमें भी अब इन्हीं चीज का यूज हमको करना होता है। तो एक एक करके आप सारे फोर्सेस को हम देखते चलेंगे, कैसे भी प्रॉब्लम हमारे पास आएगी, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम हमारे पास इलेक्ट्रोस्टेट में भी आ सकती है, मैग्नेटिज्म में भी आ सकती है, कहीं पर भी आ सकती है। तो ये वाला पोर्शन अगर हमारा क्लियर हो जाएगा तो हम देखेंगे काफ़ी सारे चैप्टर्स में SHM वाला चैप्टर है, ग्रेविटेशन वाला अगला चैप्टर हमारा है, तो बहुत जगह पे चीज़ हमको काम में आएगी। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। फिर हम लोग देख सकते हैं एक्चुअली सारे केसेस न्यूटन्स लॉ के हैं। एक लिफ्ट है, रुकी हुई है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, इसका एफपीटी बनाया t बराबर mg, तो वर्क डन बाय टेंशन, ऊपर को h डिस्टेंस चलेगा तो टेंशन भी ऊपर होगी, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर होगा, th, t की वैल्यू mg आ रही है तो डैट विल बी mgh। यही लिफ्ट ऊपर को जा रही होती a0 एक्सेलरेशन से, फिर एफपीटी बनाते, ऊपर t नीचे mg, ऊपर को a0, इस बार t माइनस mg का रिजल्टेंट हो जाता है ma0, t बराबर mg प्लस a0, वर्क डन हो जाता है mg प्लस a0 इंटू h। और यही लिफ्ट अगर नीचे को आ रही होती तो उस केस में t mg माइनस t बराबर ma0 लिखते और अकॉर्डिंगली आपका वर्क डन बाय टेंशन आ जाता है mg माइनस a0 इंटू h। यानी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स भी रहेंगी जो बहुत ही सिंपल होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम
एक कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि बेसिकली हमारे पास मैकेनिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक, या तो आप फोर्स अप्रोच से जाइए या दूसरा आप वर्क एनर्जी वाले अप्रोच से जाइए। बस आपको ये समझना होगा कि कहाँ पे फोर्स वाली अप्रोच काम आएगी और कहाँ पे वर्क एनर्जी वाली अप्रोच काम आएगी, क्योंकि दो रास्ते हैं तो आपको ये मालूम होना पड़ेगा कि कौन सा रास्ता कब यूज़ करना है। अक्सर हम लोग क्या गड़बड़ करते हैं, हम लोग इनकी खिचड़ी बना देते हैं। तो एक एग्जाम्पल से हम क्लियरली ये समझते हैं कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं और हम देखेंगे कि किस सिनेरियो में कौन सा तरीका हमको काम आने वाला है। नाउ एक हम लोग टिपिकल प्रॉब्लम देखेंगे। ये प्रॉब्लम ऑलरेडी न्यूटन्स लॉ की है, इसमें कुछ वर्क एनर्जी का रोल भी नहीं है फिलहाल। दो ब्लॉक्स होते थे, पुली के थ्रू बंधे रहते थे और पुली फ्रिक्शनलेस होती थी। तो यहाँ से हम एफईटी बनाया करते थे, कुछ कंस्टेंट यूज़ करते थे। कनेक्टेड स्ट्रिंग है तो दोनों की डिस्टेंस ट्रैवल सेम होगी, दोनों की स्पीड सेम होगी, दोनों के एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा। हम अपने इक्वेशंस बनाते थे। ये ऊपर को जा रहा था तो t माइनस m2g बराबर m2 है, ये नीचे को आ रहा था तो m1g माइनस t बराबर m1 है। दोनों को सॉल्व करके a और t की वैल्यू निकाल लेते थे, या फिर हमारा एक शॉर्टकट तरीका काम करता था जिसमें हम नेट पुलिंग फोर्स निकाल लेते थे, जिसमें हम कहते थे एक्सेलेरेशन होगा नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। नेट पुलिंग फोर्स का मतलब m1 वाला ब्लॉक नीचे को खींचने की कोशिश कर रहा है, m2 वाला ब्लॉक अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, दोनों का झगड़ा हो रहा है। तो नेट पुलिंग फोर्स हो गया m1g माइनस m2g और पूरे सिस्टम का मास हो गया m1 प्लस m2। तो आपका सेम आंसर आ जाता था, चाहे आप यहाँ से देखिए चाहे आप यहाँ से देखिए। इसके बाद हमसे पूछ सकता था स्पीड दोनों की सेम है तो किसी की भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो आप v इक्वल टू यू प्लस एटी, यू है नहीं क्योंकि रेस्ट से छोड़ा गया है, 80 कर देंगे। a की वैल्यू पुट करनी है या आप रख दीजिए बस, ठीक है ना। तो v बराबर 80 हो जाएगा। या आपसे पूछ लेगा स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ h इज द वर्टिकल हाइट ट्रैवल बाय द बॉडी। तो नीचे को आने में आपको पता है मोशन अंडर ग्रेविटी, वेलोसिटी इज √2gh, सो v बराबर g की जगह a लगा दिया। तो स्पीड आपकी हो गई 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू gh। किसी भी टाइम पे दोनों ब्लॉक्स की स्पीड सेम होनी है, बस एक की नीचे होगी और दूसरे की ऊपर होगी। तो दिस वाज जस्ट अ क्विक रिवीजन या वी हैव जस्ट सीन इन शॉर्ट किस तरीके से हम लोग न्यूटन्स लॉ से काम करते थे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेम प्रॉब्लम वी कैन डील विथ वर्क एनर्जी मेथड ऑल्सो। बस हमको ये देखना पड़ता है कि कहाँ पर फोर्स वाला मेथड काम कर जाएगा, कहाँ पर शॉर्ट टाइम में फोर्स वाला मेथड काम कर जाएगा और कहाँ पर एनर्जी वाले मेथड से हमारे पास इजीली काम आ जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे सारा काम ये वाला आसान क्यों हो गया, क्योंकि हमारा एक्सेलेरेशन कांस्टेंट आया। तो सीधा सा रूल ये है, अगर यहाँ पे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट आ रहा है तो हम सीधे डायरेक्ट मेथड से चलेंगे, लेकिन इनकेस अगर यहाँ पे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं आ रहा होता तो उस केस में वेलोसिटी या स्पीड निकालना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमको वहां पर भी काम करेगा। सो सेम प्रॉब्लम को अब हम थोड़ा सा एनर्जी मेथड से देखेंगे। सो सेम प्रॉब्लम को हम एक दूसरे व्यू से देखते हैं। अब आप देखिए, पहले हम देख चुके हैं अगर ब्लॉक m1 h हाइट नीचे जाता है तो ब्लॉक m2 h हाइट ऊपर आएगा। अब इस केस में m2 टेंशन ऊपर को है, h ऊपर को है, m2g नीचे को है, यानी टेंशन और h एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं लेकिन m2g और h अपोजिट में काम कर रहे हैं। इसी तरह से जब आप m1 के लिए देखोगे तो m1g और h नीचे जा रहे हैं लेकिन t ऊपर को है और h नीचे को आ रहा है। तो आप देखिए वर्क डन बाय टेंशन ऑन m2 t और h ऊपर को प्लस th, वर्क डन बाय टेंशन ऑन m1 t ऊपर को h नीचे माइनस th, बट नेट वर्क डन 0। ठीक है, वैसे भी आप सोचें अगर आप 1 + 2 को देखें तो टेंशन और टेंशन क्या हो जाएंगे, इंटरनल फोर्स। इसलिए क्या हम ये बोल दें क्योंकि टेंशन इज अ इंटरनल फोर्स इसलिए वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स ऑन m1 + m2 को हम 0 बोल दें बेटा। तो ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा पढ़ा है आपने, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हम वैसे दोबारा भी आएंगे लेकिन मैं यहीं पर इस पॉइंट को एकदम क्लियर कर दूं कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस आर नॉट ऑलवेज 0, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस कैन बी पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर 0 हो गए वो अलग बात है, बट ये कोई लॉजिक नहीं बना कि टेंशन इंटरनल फोर्स थी इसलिए 0 हो गया। ठीक है, सही रीजन क्या है, m1 पे टेंशन ने नेगेटिव काम किया, m2 पे पॉजिटिव काम किया, इसलिए टोटल मिलकर कितना हो गया 0। नाउ m1 ब्लॉक कहाँ रहा है, नीचे को, ग्रेविटी भी कहाँ लग रही है, नीचे को, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन ब्लॉक 1 हो जाएगा प्लस m1gh। m2 ब्लॉक पे ग्रेविटी लग रही है नीचे और m2 ब्लॉक कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा माइनस m2gh।
आप कहोगे सर मुझे आपको कैसे पता चल रहा है कि ये ऊपर नीचे जा रहा है, तो मुझे इसलिए पता चल रहा है कि एग्जामिनर ने बोल रखा है, ये मैं आपको बताना भूल गया था कि m1 का जो मास है वो m2 से बड़ा है, इसलिए आपका ये वाला सिस्टम नीचे को और ये वाला सिस्टम ऊपर को जा रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास टेंशन का वर्क डन 1 पर कुछ है, 2 पर कुछ है, ग्रेविटी का वर्क डन 1 पे कुछ है, 2 पे कुछ है, पर टेंशन का वर्क डन 1 + 2 एज अ सिस्टम 0 हो जा रहा है। वर्क डन बाई ग्रेविटी 1 पर भी कुछ है, 2 पर भी कुछ है, और दोनों यानी कि पूरे सिस्टम पर भी कुछ ना कुछ बचकर आ रहा है। ठीक है, तो इतना आप पहले नोट कर लीजिए। अब इसी प्रॉब्लम को हम स्पीड निकालने में देखिए कैसे यूज कर लेते हैं। m1 m2 हमने देखा था वर्क डन बाई टेंशन, वर्क डन बाई ग्रेविटी। अभी रिजल्ट क्या निकला, जब ये नीचे को आया और ये ऊपर को आया तो इसकी कुछ स्पीड हो गई, इसकी कुछ स्पीड हो गई, लेकिन कंस्ट्रेंट क्योंकि ये स्ट्रिंग से बंधी है और स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल बाय डेफिनेशन, सो दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए। तो अब आप देखो बेटा कितने फोर्स काम किए, m1 पे टेंशन, m2 पे टेंशन, m1 पे ग्रेविटी, m2 पे ग्रेविटी, तो कुल मिला के वर्क डन बाई टेंशन ऑन m1 प्लस वर्क डन बाई टेंशन ऑन m2, वर्क डन बाई ग्रेविटी ऑन ब्लॉक 1 प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी ऑन ब्लॉक 2 शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम इन 1 + 2। ये ऑलरेडी हमने देखा थोड़ी देर पहले, कितना आ गया था 0, और वर्क डन ग्रेविटी इतना, हाफ m1v² प्लस हाफ m2v², सारा काट पीट कर आपके पास आ गया इतना। आपने देखा ये वही वैल्यू है जो जस्ट थोड़ी देर पहले हमने फोर्स वाले मेथड से निकाली थी। तो ये आपकी मर्जी है कि आप कैसे करें। देखिए वहां पर क्या हो गया था, क्योंकि हम लोग को 11th में भी जब हम लोग होते हैं, फिर हम लोग टारगेट भी कर रहे होते हैं, तो न्यूटन्स लॉ वाला चैप्टर इतना कॉमन होता है और वो शुरू के चैप्टर्स होते हैं, तो हम लोग इतनी बार पढ़े रहते हैं, वो हमको फॉर्मूला याद हो जाता है एक अक्सर, तो हमको लगता है कि सर वहां से भी निकालना हमारे लिए आसान पड़ा। बट इन जनरल अब आप समझ सकते हैं कि आपके पास जहां पे भी फोर्स कांस्टेंट नहीं आए, जहां पे आपको फोर्स में किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन लगे, यू कैन गो विथ डायरेक्ट एनर्जी मेथड, क्योंकि एनर्जी मेथड रिजल्ट पे बेस है कि आपकी स्पीड कितनी थी, कितनी हो गई, वो प्रोसेस पे बेस्ड नहीं है। ठीक है ना। अब हम चाहें तो यहां से उल्टा करके हम एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं। इसको अब हम देखते हैं कि एक्सप्रेशन कैसे निकाला जा सकता है। अब देखो बेटा ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, हालांकि इससे डायरेक्ट आपके नीट पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए ये मान लीजिए थोड़ा सा चला नीचे, पहले हम h ले रहे थे, थोड़ा सा चला dy, ये थोड़ा सा dy ऊपर को चला, तो जो हम h ले रहे थे h की जगह हम क्या कर लेंगे, h लिख रहे थे m1g माइनस बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा के, डेल्टा की जगह छोटा सा चेंज लिख लिया डी के। हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया टी पे, तो यहाँ dy बाई dt आ गया, यहाँ dk बाई dt आ गया। ये क्या था, हाफ m1 प्लस m2v², dk बाई dt करेंगे हाफ m1 प्लस m2, चेन रूल लगा, v² का 2v और dv बाई dt। मेरे ख्याल से चेन रूल सबको मालूम है। हमने यहाँ पर क्या किया, dv से मल्टीप्लाई कर लिया और dv से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना। अब आप ये देखो dv बाई dt आगे चल के हमारा क्या, ये क्या बन जाएगा एक्सेलरेशन, और ये क्या है v। तो यहाँ से m1g माइनस m2g dy बाई dt, चाहे नीचे जाने का चाहे ऊपर, दिस इज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v, v से v कैंसिल हो गया और a बराबर कितना आ गया m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2g। यानी कि बेटा टोटली डिफरेंट अप्रोच। देखो न्यूटन्स लॉ पे हमने क्या किया, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी। यहाँ हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, यानी बिल्कुल उल्टी अप्रोच चल रही है। अब इसमें होता क्या बेटा, यहाँ पे मजा नहीं आया, मजा आता है जब आप छोटी क्लास में 11th में होते हैं या फिर आपके पास एक पूरे 1 साल का टाइम होता है। इससे क्या होता है, एक फील आता है, अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसको तो हम ऐसे चुटकी बजाते कर देंगे, ऐसे नहीं कर देंगे तो वैसे कर देंगे। और मैंने हमेशा बोला ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है जो ये डिसाइड करता है कि आप सवाल को लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो। तो मेरे पास क्या होता है, मेरे पास कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे लगता है यार मेरा जो थॉट प्रोसेस है ना वो सफिशिएंट है, ऐसे नहीं तो वैसे मैं प्रॉब्लम को कर ही लूंगा। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों के दिमाग में, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को समझे तो होते नहीं है, तो उनको लगता है कि अच्छा एक पर्टिकुलर चीज फोकस करके, देखिए बायोलॉजी नहीं है, बायोलॉजी क्या है वहां पे फिक्स है भैया, आपको बोल दिया कि भैया ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है आर्टरीज में, तो वहां पे कोई दिमाग नहीं है, लेट अस सपोज नहीं हो सकता, लेट अस सपोज ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इतना है, नहीं वो फैक्ट है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपके पास सिचुएशंस है, आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, आप क्योंकि फिजिक्स जो है वो सिर्फ एक दिमाग की उपज है, कुछ आपके सामने नहीं दिख रहा था, सिर्फ थॉट प्रोसेस चल रही है, तो इसलिए बड़ा मजा आता है। हालांकि आपको उतना मजा नहीं आएगा क्योंकि आप लोग का 1 या 1.5 महीने बाद हो सकता है सीधे सीधे आपको एग्जाम देने जाना है। लेकिन अगर यही चीज आप सोचें कि अरे वाह सर ऐसे तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम उल्टा करके भी ए निकाल सकते हैं, तो ये आपको एक फील देगा। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी लगेगा फोर्स कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है,
जब भी हमको लगेगा वर्क डन निकालने में फोर्स इज गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड, हम चुपचाप वर्क एनर्जी थ्योरम पर आ जाते हैं। एक्चुअली जब हम टुकड़े में पढ़ते हैं बेटा, तो हमको कोई ये नहीं समझाता है कोचिंग्स में, अब सारी कोचिंग की मैं बात कर रहा हूँ, कोई इक्का दुक्का जगह पे कोई टीचर बताते हैं, एक्चुअली कोई टीचर हमको नहीं बताता। न्यूटन्स लॉ में न्यूटन्स लॉ पढ़ा जाता है और वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में वर्क एनर्जी पढ़ा देता है, ठीक है ना। तो कोई हमको ये नहीं बताता है कि इस क्वेश्चन को आप 3 तरीकों से कर सकते हैं, ये भी कभी कभी लोग बता देते हैं, बट जरूरी ये जानना है कि उन 3 तरीकों में से कौन सा तरीका कब कहाँ कैसे यूज करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैं हमेशा यही कोशिश कर रहा हूँ, आप देख रहे होगे कि आप प्रॉब्लम्स में मत जाइए। देखिए प्रॉब्लम्स तो अपने आप लगेंगे, और आप ये भी नहीं कह सकते कि हमने कम प्रॉब्लम्स लगाई। आप ग्रेविटी जो आपका काइनेमेटिक्स वाली जो सीरीज है उसमें आपने देखा होगा, हमने इतनी सारी प्रॉब्लम्स उसमें लगा के आपको दे रखी हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर एक बार मेरे पास कॉन्सेप्ट की समझ होगी तो आई कैन हैंडल एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम बेटा। और नीट में तो वैसे ही जो सबसे, मैं कहता हूँ ना, जो सबसे सड़ा गला एकदम रद्दी प्रॉब्लम होती है वो बचती हैं। आपके लिए अच्छी बात है, रद्दी मतलब बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वाली, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, कोई इंटीग्रेशन नहीं। लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो कॉन्सेप्ट को क्यों समझना जरूरी होता है, जैसे कई लोग मुझसे पूछ सकते हो सर इसको जानने की क्या जरूरत है। इसको बस इसलिए जानना है, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है, आपको मन में विश्वास आता है कि अरे हम एच सी वर्मा भी लगा सकते हैं, हम उसके ऑब्जेक्टिव भी लगा सकते हैं, हम अलानी किताब भी लगा सकते हैं, हम फलानी किताब भी लगा सकते हैं। और एग्जामिनेशन हॉल में आप सबको मालूम है बेटा, अगर कोई चीज़ सबसे काम की होती है तो सिर्फ आपका अंदर का कॉन्फिडेंस होती है। एक बच्चा होता है, उसको लगता है कि मैंने तो साल भर मेहनत करी है, मैंने इतने टेस्ट दिए हैं, मेरे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हैं, मैं कहीं पे उलझूंगा नहीं। उसका टेम्परामेंट अलग होगा एग्जाम को देने का। दूसरा बच्चा, उसके मन में कहे घबराहट हो रही है, यार मैं तो ये नहीं किया, वो नहीं किया, टेस्ट पूरे अच्छे से नहीं दिए, मेरे को तो इसका क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है। वो जैसे ही पेपर देखेगा वो घबरा जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो इस वाली यूनिट को आप अच्छे से देखेंगे। अभी हमारे 2-3 इसमें पार्ट और बचे हैं। अभी वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखना है हमको, और वर्क डन बाय सूडो फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क डन बाय सूडो फोर्स देखना, क्योंकि वहां पे कई सारे सवाल ऐसे हमारे बन जाएंगे जो कि 2 मिनट में होने थे, लेकिन अगर हमको वर्क डन बाय सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वही सवाल हम आपको 20 से 30 सेकंड में करके भी दे सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए।